हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन द कैटलिस्ट। स्वागत है आप सभी का। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर internal security. So I have already covered one lecture on internal security where I said how to prepare and which book you should follow. And one more thing, many websites are also mentioned in that video. So please cover that video completely, and I have covered that what topics I'll cover here. And along with it, in this first chapter, the very first chapter, basics of the internal security, we will cover one mains answer writing, which has been one question from the mains answer writing part 2016 UPSC CSC question, right? So every day we will discuss a mains question so that you may have a firm idea regarding how you will give the answer to the particular questions, because internal security is basically related to your current affairs. So according to the current affairs, you have to integrate the points in your answer, right? So let's continue with this session. This one is the first chapter, but the strategy part I have already covered in the first video, so kindly watch that video. And आप सभी का स्वागत है। और what I'll teach you in this section, so as I have told in the first lecture, section 1 will be based on 5 different chapter, and first chapter will be basic concept of internal security. And in this chapter we will cover what is the difference between internal and external security, what is terrorism, what is militancy, what is the difference between terrorist and militant. So nowadays these two terms used as synonymously, that means ये आजकल interchangeably यूज किए जाते हैं, but there is a slight difference in these two. What is left wing extremism, and it is in extended way. For example, in India around 40% of areas are covered under left wing extremism, that is Naxalism, Maoism. In present scenario, day by day it is decreasing because of the efforts from the home ministry. And insurgency, so what is insurgency, militancy, terrorism, we will discuss these few topics in this chapter along with a 2016 asked main questions, right? तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीएस पेपर 3 में आता है इंटरनल सिक्योरिटी, राइट? चलिए, सो आई थिंक ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल सही चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर, यस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। देखिए, इंडिया का बहुत पुराना इतिहास रहा है। नॉट ओनली इंडिया, एनी कंट्री, एनी रीजन, इवन मैं बात करूं उस समय के जो रॉयल किंग्स हुआ करते थे, वहां पर भी देयर इज सम इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। और उस समय पर जो स्ट्रेटेजिस्ट थे कौटिल्य, उन्होंने भी यहां पर 4 प्रकार की स्ट्रेटेजीज को बनाने की बात की थी। देयर शुड बी 4 स्ट्रेटेजी फॉर द पीस एंड काम tenure of any king. First is there should be special focus on internal security, external security, and external forces के द्वारा जो internal problem create किया जाता है, internal problem के कारण जो external problem create किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने भी 4 different parts में divide किया था। So India's problem is rather bigger than any other country, because here different caste, religion, creed, and there is linguistic problem again. So many features of India makes the internal security in the form of imbalance in India. So while India has established itself in the global arena and registered a phenomenal growth, no doubt India was a not very developed nation, because you have heard about that the money drains to the Britishers, complete money was drained to the Britishers, and
That is why we were a collapsed economy, but gradually we implement various 5-year plans and many more things, but ultimately we became powerful, but there is some security threat are haunting the nation, and these are many more security concerns like cyber crimes, like money laundering, terrorism, militancy, रीजनलिज्म, क्षेत्रीयवाद भी एक बहुत बड़ा जो है भारत के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। एंड in such type of subgroups, they all are demanding, they all are protesting for their own demand. So this is a problem. So the menace of threat has been increasing over the year. जैसे जैसे भारत ने ग्रोथ किया, these groups, these organized crime is increasing day by day. In the same manner, Indian armed forces, paramilitary forces, police forces were also deployed in the powerful manner. So to stop these all menace, इन सभी प्रकार के menace को रोकने के लिए, है ना, लगातार ये menace बढ़ते चले जा रहे हैं। So simple meaning of security, simply हम लोग बात करें, what does it mean? Security means protection from harm, any kind of harm, whether life threatening, whether wealth threatening. So there should be protection. So national security is the protection of state and it is citizen from all kind of crisis using political, military, economic, diplomatic power. तो हमें नेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जितने भी नागरिक हैं उन्हें पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिकल, डिप्लोमेटिक पावर, सभी तरह से इन ऑल एस्पेक्ट दिस शुड बी प्रोटेक्शन. It includes the protection of its territory, yes, the territorial boundary. That is why we deployed paramilitary forces, BSF, SSB, and Assam Rifles in Myanmar, on Myanmar border. There should be integrity, there should be sovereignty. No other country can overcome in any sense to the Indian integrity, and that is what sovereignty. भारत की sovereignty क्या है? संप्रभुता एंड एडवांसमेंट ऑफ वाइटल नेशन इंटरेस्ट, और हमारे जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जो हित हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी, और इसके लिए वी नीड प्रोटेक्शन. सो व्हाई सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड एंड स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी, दीज आर द रीजंस. द टू एस्पेक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज, दीज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल. जब हम लोग इंटरनल की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस के रूप में इंटेलिजेंस ब्यूरो, राइट, इसके अलावा पुलिस कमांड्स हैं, उनके भी खुफिया विभाग होते हैं, तो इंटरनल आईबी काम करता है. एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए रॉ काम कर रहा है. इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मिनिस्ट्री की बात करें तो होम मिनिस्ट्री काम कर रही है. एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बात करें तो हम लोग जो है डिफेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है, और डिप्लोमेटिकली जो प्रेशर बनाने के लिए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री काम कर रही है ना, सो दैट डिप्लोमेटिकली देयर में बी प्रेशर ऑन डिफरेंट ग्रुप्स जो भारत से बाहर है. तो कौटिल्य ने भी ये लिखा था कि देयर मस्ट बी 4 काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट इन एनी कंट्री, इन एनी एम्पायर, किसी भी एम्पायर में. एक तो इंटरनल हो सकता है, दैट कैन बी एक्सटर्नल, दैट कैन बी इंटरनली एडेड एक्सटर्नल, आंतरिक के कारण जो बाहरी है, और एक्सटर्नली एडेड इंटरनल. जैसे एक्सटर्नली एडेड इंटरनल कई बार हम लोग पाकिस्तान के लिए बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाता है ये, एक राज्य प्रायोजित आतंकवाद. इन द सेम वे वी प्रेजेंटली नीड सच 4 काइंड, वी हैव सच काइंड ऑफ 4 थ्रेट. देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के तौर पे बात करें, सो द नेशनल सिक्योरिटी हैज लॉन्ग बीन यूज्ड बाय पॉलिटिशियन एज अ rhetoric phrase by military leader to describe a policy object. Rhetorically मतलब सिंपली ये बस वो भाषणों में कहा जाता था, लेकिन हाल में क्या हुआ, more recently however it has been adopted by social scientists to refer both analytical concept and a field of study. और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को प्रेशराइज कर देंगे, दबा देंगे बाय फोर्स. एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है इजराइल वाला,
इजराइल जो कुछ कर रहा है, कितना भी गाजा को प्रेशराइज कर दे, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, उसने गाजा को पूरे अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन गाजा के लोग क्या करते थे, दे बिकेम वॉल्फ लोन। वॉल्फ लोन कौन होते हैं, या फिर फिदाइन अटैक करते थे। वॉल्फ लोन कौन होते हैं, अकेला व्यक्ति जाता है गन लेकर गुप्त तरीके से और कई 50-100 को मार देता है। और इस प्रकार का फेस देखा गया और इसीलिए क्या किया था कि गाजा की बॉर्डर को सील कर दिया गया था बाय हुम, इजराइल। तो वी कैन नॉट पुट डाउन एवरीथिंग, हम किसी चीज को पूरी तरह से दबा नहीं सकते, वहां पर हमें रिसर्च की आवश्यकता है, लोगों को स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है, और बाय प्रेशर, बाय फोर्स एज वेल एज बाय इमोशन, और बाय प्रोवाइडिंग द वर्क, तो उन्हें कामकाज दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ऑटोमेटिकली दे विल बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी कंट्री। When modern social scientists talk of this concept, they generally mean the ability to nation to protect its internal value from external threat। तो internal value from external threat कैसे भाई, क्योंकि देखिए क्या है, भारत की अपनी internal values हैं, but internal जो organized groups हैं, they are getting the amount from the foreign state। The field of study thereby encompasses attempt to analyze the manner in which nations plan, make, evaluate। तो यहां पर एक नेशनल प्लान होना चाहिए टू स्टॉप सच क्राइम, मेक, इवेल्युएट, और जो पहले के डिसीजन लिए गए, पॉलिसीज ली गई हैं, उनमें वी हैव टू बी कैलकुलेटिव, वी हैव टू बी डिप्लोमेटिक। और देखिए जरूरी नहीं है कि बाय फोर्स हम किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करें। First and foremost, if it is possible, we should use the peaceful means। So ये एक बेहतरीन तरीका है। तो जब हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करेंगे तो 2 सिक्योरिटी चैलेंजेस आर देयर। एक तो है एक्सटर्नल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, थ्रेट फ्रॉम आउटसाइड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभालता है, और ये क्या है, थ्रेट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द नेशनल बाउंड्री। तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और इंटरनल किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, इंटरनल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। थ्रेट फ्रॉम विद इन द नेशनल बाउंड्री मे बी अबेटेड बाय आउटसाइड द बाउंड्री, भले ही बढ़ाया जाए बट नेशनल बाउंड्री के अंदर हो, वो इंटरनल सिक्योरिटी है, राइट। सो इफ यू विल टॉक अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, व्हाट इज द डिफरेंस, जैसा कि टॉपिक भी था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आंतरिक सुरक्षा एंड बाह्य सुरक्षा। तो देखिए इंटरनल सिक्योरिटी refers to upholding national law and maintenance of peace, law, order within the country's territory। This is the required thing कि according to the national law, according to the constitution, according to the law sections, है ना, there must be peace, law and order। Internal security come within the realm of, yes, Ministry of Home Affairs। Internal security act of keeping peace within border of a sovereign state, whether it is India or any country, those who are sovereign state। So in this way, to uphold the national law and defending against the internal security threat, that is what completely internal security। तो I think internal security में आपको किसी प्रकार का कोई dilemma, I think there is no confusion regarding internal security। Now second point is what, external security refers to security against the aggression by foreign countries, as we have seen in Pangong Tso Lake, Galwan Valley, right। So यहाँ पर जो एग्रेशन है, हम लोग जो पाकिस्तान में देखते हैं LOC की तरफ, चाइना से कई बार LAC की तरफ देखते हैं, है ना। सो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। सो यहां पर हम लोग चूंकि विल नॉट डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आर मेन कंसर्न इज व्हाट, इंटरनल सिक्योरिटी, एंड दैट इज व्हाई। सो व्हाट ऑल आर द मेजर चैलेंजेस, यदि ये पिन पॉइंट नोट्स के तौर पे आपको याद रहेगा, एंड यू विल हैव कंप्लीट जिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो फर्स्ट इज मिलिट्री रीजनलिज्म। एक तो क्षेत्रीयवाद मिलिट्री है, फिर रीजनलिज्म। मिलिट्री रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है, कई बार किसी एक क्षेत्र विशेष में एक ग्रुप बना लिया गया हो। कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का मतलब क्या है, साम्यवाद।
कास्टिज्म इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। लेकिन ये कम्युनलिज्म के अंदर क्या है, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, कम्युनिज्म नहीं है, ये कम्युनलिज्म है। कम्युनल राइट्स होते हैं, कम्युनल का मतलब जो दंगे होते हैं, इट इज ड्यू टू द राइट्स ड्यू टू द रिलीजियस व्यू। जैसे आपने पालगढ़ के अंदर देखा होगा, पालगढ़ के अंदर जो है कास्टिज्म हुआ, पालगढ़ में है ना, जो एक साधु को किल कर दिया और उसके बाद में बहुत सारी चीजें हुई, वो कास्टिज्म है। एथनिक प्रॉब्लम, लेफ्ट एथनिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, एथनिक का मतलब जैसे बोडो है ना, यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बोडोलैंड में। सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, तो एक तो बॉर्डर मैनेजमेंट हो हमारा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जैसे नक्सलाइट्स, माओइस्ट, एथनिक प्रॉब्लम बोडोज वाली, कास्टिज्म दैट मीन्स पालगढ़ का एग्जाम्पल। कम्युनलिज्म तो भारत में चलता ही रहता है अलग अलग, जैसे गुजरात के जो राइट्स हुए थे। एंड रीजनलिज्म, क्षेत्रीयवाद के कारण आप देखते होंगे कि कई बार क्या होता है, रीजनलिज्म की प्रॉब्लम आती है। सेकेंड मेजर चैलेंज नाउएडेज बिकेम साइबर क्राइम, और इसके लिए भारत में CERT इन, CERT इन ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया। और यहां पर क्या है, किसी भी प्रकार का भारत में साइबर अटैक होता है, सबसे पहले ये बताती है थ्रेट। सेकेंड इज टेररिज्म, थर्ड इज इंसर्जेंसी है ना, एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और आप मिलिटेंसी भी कह सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं मिलिटेंसी। तो ये मेजर प्रॉब्लम है इंटरनल सिक्योरिटी को। आपको एक शॉर्ट पॉइंट में देखना है तो आप कुछ इन 2 पॉइंट्स को देख लीजिए, ऑटोमेटिकली कवर हो गया। और इन सब टॉपिक्स को हम लोग सेपरेटली डिस्कस भी करने वाले हैं। सो there are several aspects of internal security as diplomatic there are several aspects of internal security such as domestic, घरेलू, domestic peace there is required, लेकिन इंडिया में it is not possible because large diversity, this much of diversity you will not found in anywhere in the world. Rule of law, पब्लिक सेफ्टी, दीज आर द एस्पेक्ट्स, ये हम उम्मीद करते हैं कि डोमेस्टिक पीस हो, रूल ऑफ लॉ हो पूरे देश में, पब्लिक सेफ्टी हो, पीसफुली को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, कम्युनल हार्मोनी हो। हार्मोनी का मतलब कि उनके बीच में अच्छा सामंजस्य रहे। सो द मेन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस टू द कंट्री, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, टेररिज्म, मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, रीजनलिज्म, कम्युनल, एथनिक वायलेंस, साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, है ना। और इन सब के लिए हमें बॉर्डर मैनेजमेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ड्यू टू दिस बॉर्डर एंट्री के बाद जो है लोन वॉल्फ या फिर कह सकते हैं आप फिदाइन अटैक, तो इन सब से हमें बचने की आवश्यकता है। और इसके लिए प्रॉपर मेजर्स, तो देखिए आज की तारीख में आपको पता होगा कि नाउएडेज वेरी लेस अमाउंट ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इंडिया seen in past. Why? Because of the security agencies IB and RAW, these are working in a sound manner, they are working quite well, they are well integrated, and हमने बहुत सारे जो नियम लाए हैं, NTCA, NCTA, नेशनल काउंटर टेररिज्म एक्ट जो है, तो इस तरह के चीजें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजों को एक्ट, लॉ, जो टाडा, पोटा, ये सब एक्ट पावरफुल एक्ट हैं। देयर आर सेवरल हिस्टोरिकल एंड नॉन हिस्टोरिकल रीजन फॉर कॉजिंग दीज प्रॉब्लम सच एज, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारत का क्या है, होस्टाइल नेबर्स, एंड कौन से है वो, चाइना, पाकिस्तान। पोरस बॉर्डर, पोरस बॉर्डर का मतलब क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोरस का मतलब ये है कि इजी इन एंड आउट इन द बॉर्डर, और पोरस बॉर्डर में सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं आपको तो नेपाल बॉर्डर, क्योंकि नेपाल में हमने जो, नेपाल में क्या है कि हम लोग आसानी से जा आ सकते हैं विदाउट वीजा। एक और चीज ये है कि पॉवर्टी के कारण यहां पर क्या होता है, दी यूजिंग देयर इमोशन, different organized terrorist activists can aggravate
कैन एग्रेंडाइज द पब्लिक। तो पॉवर्टी एक बहुत बड़ा कारण है, गरीबी के कारण वो बहुत जल्दी से इंक्लाइंड हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम इन इंडिया एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे टेंड्स टू दिस, है ना। आपने सुना होगा कि कई बार जो है कुछ ऐसे टेररिस्ट हैं जो बांग्लादेश से भारत आ गए हैं और हार्डली 500 में किलिंग कर देते हैं, 500 में। इनइक्वालिटी, फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो ये भारत, फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अगेन अ पॉइंट। इंक्रीजिंग कम्युनल डिवाइड, ये लगातार क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज आर डूइंग दिस। कास्टिज्म इज अ प्रॉब्लम। सो दीज ऑल पॉइंट्स यू मस्ट हैव पिन पॉइंट notes so that you will have each and every point in your mind. Sectarian, sect का मतलब अलग अलग भागों में बांट देना, sect अलग अलग, जैसे sect धर्म होते हैं उनके हिस्से। So sectarian politics, linguistic issues, separatist politics भी है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर में PDP, separatist politics, पुअर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, बहुत बहुत डिले हो जाता है हमारे जस्टिस सिस्टम। ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंग्विस्टिक इश्यू है ना, सेक्टेरियन पॉलिटिक्स, कास्टिज्म, नेक्सस, नेक्सस का मतलब क्या होता है, गठजोड़ अमंग द क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स इन इंडिया, ऑल द बाहुबलीज, ऑल द पावरफुल एंड मसल्स पावर पर्संस हैविंग अ ग्रेट नेक्सस एंड दीज ऑल आर द लेथल, यही जो है घातक है, नॉन स्टेट एक्टर्स एंड सो ऑन। सो लेथल नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है, जो भारत के बाहर के लोग हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, दे आर प्लेइंग देयर कार्ड्स, वो भी अपना काम कर रहे हैं। सो इस प्रकार से लगातार टेररिज्म जो है और मिलिटेंसी भारत में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, सेक्टेरियन पॉलिटिक्स, दीज ऑल आर द, और पुअर जस्टिस सिस्टम, अगेन दिस इज अ इश्यू, है ना। तो ये एक एक पॉइंट, नेक्सस अमंग क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियंस, फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनल डिवाइड, और ये हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। आप वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, द वे आफ्टर अ पोस्ट पोल रिजल्ट यू कैन सी होस्टाइल नेबर्स, ये सभी पॉइंट्स आपको यू मस्ट रिमेंबर, राइट। दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स, ये आप कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग दिस पैराग्राफ, राइट। चलिए अब बात करें टेररिज्म की। सो टेररिज्म इज अ टर्म, इट इज इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, इट बेसिकली डिस्क्राइब द फियर, मतलब जो टेरर क्रिएट कर दे, और मतलब डिस्क्रिमिनेट का मतलब तो क्या होता है, भेदभावपूर्ण वायलेंस, इनडिस्क्रिमिनेट, कोई भी है सबको मारना। सो इंटेंशनली, जानबूझ के किसी को हत्या कर देना, मारना, लोगों में डर का माहौल पैदा कर देना, दिस इज ऑल अबाउट द टेररिज्म, मतलब फियर का एनवायरमेंट पैदा कर देना। और ये सब किया क्यों जाता है, इन ऑर्डर टू अचीव अ पॉलिटिकल और अ रिलीजियस, है ना। वैसे देखिए जिहाद बहुत अच्छी टर्म है ना। कभी आप शाहरुख खान को सुनेंगे तो वो बताएंगे कि जिहाद का मतलब बहुत पॉजिटिव सेंस में होता है, लेकिन आज की तारीख में जिहाद कुछ और ही बन गया है ना। मैं पर्टिकुलरली टेररिस्ट की बात कर रहा हूं, उन्होंने इसकी एक नई डेफिनेशन दे दी। सो आइडियोलॉजिकल एम is used in regard to primarily to refer to violence against civilian and non-combatant, जो लड़ाई युद्ध में नहीं जाना चाहते उनमें इस प्रकार की पॉलिटिकल रिलीजियस आइडियोलॉजी के एम को यूज करते हुए, है ना, वायलेंस करना और फियर का माहौल पैदा करना, दैट इज व्हाट टेररिज्म। तो बेसिकली व्हाट इज टेररिज्म, मास किलिंग, किल सिविलियंस, वायलेंस, ब्लडशेड, बॉम्ब ब्लास्ट, लोन वॉल्फ अटैक एंड फिदाइन अटैक, ये सभी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि लोगों के दिमाग में डर पैदा करना, आम आदमी के, नो स्पेसिफिक टारगेट, है ना, कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, ट्रांसनेशनल इन नेचर। ये देख ही रहे हैं, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, आप वहां पर देख लीजिए, पहले हामा, है ना, हामा और हमास जो हैं ये दो ग्रुप हुआ करते थे, और हेजबुल्ला इन सीरिया, नाउ बोको हरम जो है वो नाइजीरिया में बोको हराम है, राइट। और एक समय पर अलकायदा बहुत पावरफुल हुआ करता था, फिर बाद में आईएस आया, उसके बाद में दूसरा है अलकायदा, पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब जो है तहरीक तालिबान और बहुत सारे मतलब ग्रुप्स आ चुके हैं। सो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, तो यहां पर मिलिटेंसी जो है
मिलिटेंसी क्या होता है, देखिए व्हाट इज मिलिटेंसी। यहां पर देखिए फियर और डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू ऑर्गेनाइज, मतलब एक जिस प्रकार आर्मी होती है उस प्रकार से पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड पीपल हो और उनका उद्देश्य पॉलिटिकल है, वो अपना कोई एक पर्पस किसी लार्ज ग्रुप से या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से मनवाना चाहते हैं, दैट इज व्हाट मिलिटेंसी। तो जब व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ ऑन द पैटर्न ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जैसे आर्म्ड फोर्सेस होती है ना वैसे इनके पास सभी गन हथियार और पूरी तरह से उसी ऑर्डर में ये काम करते हैं। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में पूरा एक प्रेसिडेंस क्रम होता है ना, हमारे जनरल होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर है ना लेफ्टिनेंट होते हैं लास्ट में, ऑफिसर्स की बात करें तो टू फाइट अगेंस्ट द स्टेट, और ये एक पूरे स्टेट जैसे भारत के अगेंस्ट या किसी भी अन्य देश के अगेंस्ट यूज टू कन्फ्रंटेशन और वायलेंट मेथड का यूज करते हैं इन सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल और सोशल कॉज। तो ये अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा रखते हैं और उसको पूरी तरह से फुलफिल करना चाहते हैं, इट इज कॉल्ड मिलिटेंसी। अब देखिए कई बार होता क्या है, मिलिटेंसी और टेररिज्म दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन terrorist and militant? These two words normally interchangeably used, but ऐसा करना अभी गलत है। What is militant and terrorist? Both have their own agenda. These agendas are politics, or the difference however lies in the means that which they hope to achieve their desired goal. यहाँ पर टेररिस्ट केवल डर पैदा करना चाहते हैं, जबकि मिलिटेंट क्या है, अपना पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह से, राइट। तो अकेले अटैक करते हैं टेररिस्ट, नॉर्मली देखा होगा आपने। सो मिलिटेंसी उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, टेररिस्ट का कोई उद्देश्य नहीं होता, बस मारना है, बस केवल डर पैदा करना है। मिलिटेंट का तो एक पूरा है ना, तो ये ज़्यादातर मिलिट्री बेस को अटैक करना, डिफेंस इंस्टॉलेशन को अटैक करना, आर्मी और पुलिस मिलिट्री वेपन को, जैसे नक्सलाइट्स भी अभी आजकल जो गुरिल्ला वार आपने देखा होगा। इंडिया ने इतने सालों में दुनिया के दूसरे देशों को भी गुरिल्ला वारफेयर सिखाया है, हाउ गुरिल्ला वारफेयर इज, और असम में इसका सेंटर भी है। इवन अमेरिकन्स गेट ट्रेनिंग देयर। सो सिविलियन कैजुअलिटी है ना, इंसिडेंटल, बट मतलब जो सिविलियन को चोट पहुंचाना बट नॉट इंटेंशनली, इट रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ ऑन पैटर्न ऑफ मिलिट्री। तो ये मिलिटेंसी और टेररिज्म में अंतर है, आप एक बार इन दो पॉइंट्स को जरूर देखेंगे। सो टेररिस्ट का मतलब क्या है, मैंने बता दिया आपको, फियर, डर का माहौल पैदा करना, बस वायलेंस करना, डिस्ट्रक्टिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, उनका कोई प्रॉपर इनोसेंट पीपल को मारना, हत्या करना, ये टेररिस्ट है। टेररिस्ट ऑफन चूज सिविलियन एज देयर टारगेट एंड ड्रॉइंग अटेंशन टू अथॉरिटी टुवर्ड्स देमसेल्फ, बस वो अपनी तरफ है ना आकर्षण, अटेंशन क्रिएट करना चाहते हैं। बट मिलिटेंट डू नॉट यूज फिजिकल वायलेंस, दे आर यूजुअली सीन इन यूजिंग वर्बल वायलेंस। पहले वो वर्बली बात करते हैं, जब स्टेट उनकी बात नहीं मानती है देन वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम एक्शन लेकर और अपने डिजायर गोल को पूरा करके बताते हैं। तो ये मिलिटेंट डू नॉट टारगेट सिविलियंस एज टेररिस्ट टू, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, राइट। मिलिटेंट यूजुअली रिबेल अगेंस्ट स्टेट, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। उनका विद्रोह जो होता है वो राज्य से होता है, ना कि आम जनता को मार रहे होते हैं अननेसेसरीली, है ना। इनका केवल ध्यान आकर्षण करना है। जो टेररिस्ट हैं वो तो केवल, ठीक है। सो ऑथोरिटी विद द एम ऑफ गेनिंग, और वो क्या चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी रीजन में जो है वो अपनी शक्ति स्थापित करना चाहते हैं, या फिर उस एरिया को पूरी तरह से लिबरेट करना चाहते हैं, स्वतंत्र करवाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट करवाना चाहते हैं। जैसे लिट्टों का क्या उद्देश्य था भाई, LTTE है ना, आपने नाम सुना होगा LTTE। कहाँ थे भाई, तमिलनाडु में। कहाँ पहुंच गए, श्रीलंका में। श्रीलंका में जो श्रीलंकन्स हैं, सिन्हालीज जो हैं, वो तमिलियंस को बहुत ज़्यादा क्या करते थे, परसिक्यूट किया करते थे। एंड अल्टीमेटली लिट्टे ऑर्गेनाइज्ड इटसेल्फ, और लिट्टो ने क्या किया, उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस की बात की और ऐसा बोला कि भाई श्रीलंका का ये वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला आप किसको दे दीजिए, आप तमिलियंस को दे दीजिए। इस तरह से पूरे जो ऑर्गेनाइज्ड ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं। अब देखिए जब हम लोग टेररिज्म इंडेक्स की बात करेंगे, 2020 का टेररिज्म इंडेक्स आया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में 8वां रैंक है। पहले नंबर पे था अफगानिस्तान, 7वें नंबर पर पाकिस्तान है। तो भारत में टेररिज्म बहुत ज़्यादा, लेकिन
डे बाय डे इट इज ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग। इवन जो रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग क्या होता है, नक्सलिज्म, उसको भी भारत ने काफी हद तक प्रेशराइज्ड कर दिया है, लोगों को स्ट्रीमलाइन किया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल उन्हें अटैक करके ही कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन, पीसफुली एग्रीमेंट, डिप्लोमेटिकली, एंड अल्टीमेटली इफ देयर इज नो रिजल्ट देन वी कैन यूज द प्रेशर फोर्स, राइट। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको खत्म कर सकते हैं। हाउएवर इट इज कॉमनली नोन फैक्ट दैट मिलिटेंट विल रिजॉल्व टू, और कई बार क्या होता है कि यदि वो उनका अपना गेन प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं तो फिर वो फाइनली टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज करना भी शुरू कर देते हैं। बट आपको बेसिक एक डिफरेंस समझ में आ गया होगा मिलिटेंट एंड टेररिस्ट के बीच में, राइट। चलो आप लोग इसे रीड आउट भी कर लेना एक बार। ये आपको जो पीडीएफ है, दिस होल पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय द टीम, सो काइंडली गो थ्रू इट। और आपको एक डिटेल में एक पॉइंट्स जो है ना, पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल रही है। सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रिबेल अगेंस्ट, देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जैसे ही आ जाए उसका मतलब याद रखना, लेफ्ट एंड राइट होता क्या है बेसिकली। देखिए जो पार्लियामेंट थी यूके की, तो वहां पर कुछ फिलोसॉफीज थी मार्क्सिज्म को लेकर, और मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और कम्युनिज्म, उसका और ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म वो लेफ्ट हो गया। और राइट वाले क्या हैं, जो फॉरवर्ड पॉलिसी रखते हैं। तो कुछ हद तक राइट होते हैं, बीजेपी जो है वो शिवसेना है, और उनसे भी ज्यादा राइट विंग वाले कौन होते हैं, जो वो एक्स्ट्रा फॉरवर्ड पॉलिसीज रखते हैं, है ना, तो वो राइट विंग पॉलिसी वाले हुए। सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रिबेल अगेंस्ट द स्टेट, एंजॉय द सपोर्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, एंड वो वायलेंट एक्शन करते हैं। और ये काफी हद तक किससे संबंधित है, काफी हद तक ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से संबंधित है। और वो क्या है, देखिए मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी या यूं कह लीजिए मार्क्सवादी जो विचारधारा है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए 100 लोग हैं ना, तो 100 के 100 को बराबर रुपया मिले। मतलब यदि ये 100 लोग हैं और यहां पर जीडीपी 1000 है, तो सबको बराबर 10 10 10 10 10 रुपीज मिले। ये साम्य की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करें, ईच एंड एवरीवन शुड बी इक्वल्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल। यदि ऐसा होगा तो फ्रीडम खत्म हो जाएगी। वाई? बिकॉज if anyone who is talented and he is also getting 10 rupees and who is not talented, again he is getting 10 rupees only, so it is not possible. Utopian Marxism is not possible. यूटोपियन का मतलब होता है बिल्कुल आदर्शवादी तरीके से, इट इज नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली क्या होता है कि इस मार्क्सवादी आइडियोलॉजी में ये इतने ज्यादा रम जाते हैं, इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये जो केंद्र की सरकार है, देखिए आजकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नाउएडेज इट इज बिकमिंग कैपिटलिस्टिक डे बाय डे, और बनना भी पड़ेगा। जितने भी विकसित राष्ट्र हो रहे हैं, इवन चाइना में भी कैपिटलिज्म आ रहा है धीरे धीरे, जबकि वहां पर साम्यवादी सरकार है बट कैपिटलिज्म है। तो कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब जो जितना मेहनत कर रहा है, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, वो पैसे से पैसा बना रहा है। तो यहां पर जो गरीब लोग हैं और ये जो मार्क्सवादी साम्यवादी विचारधाराओं से जो प्रेरित लोग हैं, वो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर और फिर क्या करते हैं, अल्टीमेटली दे वांट टू बी इक्वल सोसाइटी, बट इट इज नॉट पॉसिबल। एंड दिस इज होल द मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी। सो राइट, तो इसलिए क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं और दे वांट टू ओवर पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट। और आपको पता होगा भारत में कानून सान्याल, वहां पर आपको नक्सलवाड़ी, देखिए नक्सलिज्म स्टार्ट कहां से हुआ, नक्सलवाड़ी नाम का एक विलेज था वेस्ट बंगाल में, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में, है ना। एग्जैक्टली मैं बात करूं तो सिक्किम के नीचे नक्सलवाड़ी स्टेट, वहां से शुरू हुआ। नक्सलवाड़ी जो विलेज है, वहां से कानू सान्याल, है ना, इन्होंने वायलेंट अपराइजिंग किया, ग्रुपिंग बनाया, और
ये एक लार्ज स्केल पर लगभग 14 to 18 स्टेट्स में इसने अपना फ्लैग परचम लहरा दिया, और रेड फ्लैग होता है इनका। और ये उम्मीद कर रहे थे कि 2025-2030 तक है ना पूरे भारतवर्ष में रेड फ्लैग फैला देंगे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसीज डिप्लोमेटिकली बाय फोर्स कंट्रोल डाउन देम, राइट। तो डे बाय डे ऐसा मतलब हुआ, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना भी जरूरी है। सो 1967 दे आर ट्राइंग टू डेवलप रिवोल्यूशनरी ऑपोजिशन, और वहाँ पर CPIM मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट की लीडरशिप। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, और कुछ इस, और देखिए इनको सपोर्ट भी क्या है, चाइना से। इंटरनली भारत डीएस्टेबलाइज्ड हो जाए, इसके लिए फॉरेन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आता है, मनी आता है ना। तो देखिए पास्ट फ्यू ईयर वी हैव सीन दैट नक्सल्स स्प्रेडिंग इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट 40% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ए कंट्री, बट इन दीज लास्ट फ्यू ईयर्स ये बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज टेररिज्म, व्हाट इज टेरर, हु इज टेररिस्ट, व्हाट इज militant, who is militant, what is militancy, what is difference and difference between terrorist and terrorism and militancy, and also this left wing extremism. Now we will cover insurgency. तो देखिए insurgency का मतलब कुछ नहीं है, एक ही शब्द समझेंगे आप। insurgency मतलब rebel and to rise up। देखिए यहाँ पर एक ही वर्ड आएगा, to rise up, उठ खड़े होना किसी के लिए, insurge कर जाना, right? When a group of local people declare themselves rebel group picks up arm against the state to oppose the constitution and existing administrative and political system, कई बार ऐसा होता है इंसर्जेंसी, विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, और ये स्मॉल स्केल पर होता है। देखिए इंसर्जेंसी हमेशा स्मॉल स्केल पर होती है, क्योंकि पर्टिकुलर रीजनल ग्रुप ये करते हैं, और वो अगेंस्ट हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम के, राइट। तो क्या है ये, तो एक तो इंसर्जेंसी में आपको याद रखना है लोकल पीपल फाइटिंग एज अ रिबेल ग्रुप अपोजिंग टू एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ये पॉइंट आपको याद, बस ये पिन पॉइंट आपको याद रह जाए एग्जाम के लिए, आप जस्ट नोट्स बनाते चलेंगे साथ में। किलिंग, वायलेंस एंड अंडरग्राउंड मूवमेंट अपोजिशन टू कॉन्स्टिट्यूशन, और जो संविधान में उनके मतलब संविधान में वो चाहते हैं कि कुछ इस तरह का भी ऐड हो जाए जो कि अब तक ऐड नहीं हुआ है, उनके कुछ अधिकार छीने जा रहे हो, तो इसके लिए वो उठ खड़े होते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी देश में कुछ प्रॉब्लम है, उन पर भी डिस्कशन कर लिया जाए। तो एक तो है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। हमारे जो देश में बात करें, हिंदुइज्म आइडियलिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिज्म है, दैट मीन्स हार्ड फॉलोअर है। मुस्लिम्स की बात करें, वहाँ पर कुछ हार्ड फॉलोअर्स हैं और वो अपने लोगों को एग्रेंडाइज करते रहते हैं। फिर इधर क्रिश्चियन में और डिफरेंट रिलीजन में ये प्रॉब्लम है, नॉट ओनली इन रिलीजन बट भारत में सेक्ट्स में भी ऐसा है। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए क्या है, समय समय पर इन पर क्या है, एक जो ना इंटेलिजेंस नेटवर्क होना चाहिए, ताकि भाई किस लेवल पे वो क्या बोल रहे हैं। कई बार वो है ना रिलीजियस लीडर होते हैं, प्रॉफिट बन जाते हैं, और फाइनली जो है ना नेगेटिवली देश को भ्रामक तथ्य, दे आर मिसगाइडिंग लार्ज सेक्शन, है ना। सो रेफर टू बिलीफ ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन एब्सोल्यूट ऑथोरिटी ऑफ सैक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट और टीचिंग। तो ये जो फंडामेंटलिज्म है ना, ये भी कई बार क्या होता है, शुड देयरफॉर आल्सो फोर्स अपॉन अदर, और ये फोर्सफुली वो इंप्लीमेंट कर देते हैं। सेकंड हो रहा है क्या कि जैसे पोरस बॉर्डर है नेपाल की, तो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन तो आप रेगुलरली देख ही रहे हैं नेपाल बॉर्डर पे। इवन इन पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान बॉर्डर को तो हमने पूरी तरह से सीज कर दिया है। तो वो क्या करता है, पाकिस्तान, चाइना उसका फेवर्ड है, और यहाँ से नेपाल बॉर्डर की मदद से क्या है, बहुत सारे आतंकवादी का बड़ा ग्रुप जो है वो आजकल नेपाल बॉर्डर पे, इसलिए सशस्त्र सीमा बल याद रखेंगे नेपाल पे। एसएसबी हम लोग बहुत अच्छे से टेक्निकली पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर कौन सी फोर्सेज डिप्लॉयड है, कितना अच्छा काम किया है, पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं हमारे, राइट। एंड इज इलीगल अटेम्प्ट टू क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड टू डिसरप्ट द सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर एंड हार्मोनी ऑफ द नेशन। तो ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो गया।
अगेन आपने देखा होगा चाइना ने पैगोंग सो लेक पर जब ये सब हुआ तो मुंबई के अंदर अटैक कर रहा था। कई प्रकार के साइबर टेररिज्म, वायरसेस फैला देना, है ना, रैंसमवेयर, है ना, तो स्पाईवेयर, तो इनसे क्या हो रहा है, यहां पर ये जो हैकिंग, ये सब जो एक्सपीरियंस साइबर टेररिस्ट है, इनके लिए भारत में एक एजेंसी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सर्ट इन, है ना, सर्ट इन। व्हाट इज इट? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, सर्ट इन। ठीक है, तो यहां पे साइबर टेररिज्म अगेन अ इश्यू फॉर इंडिया। तो यहां पर क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच टेररिस्ट मे बी पॉलिटिकल। तो ये क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वन डायमेंशन, दे वांट टू डीएस्टेबलाइज इंडिया, इट्स इकोनॉमी, इट्स सोशल ऑर्डर बाय हुक एंड क्रोक इन ऑल द डायमेंशन, बाय अटैक, बाय misguiding people, by attacking, cyber attack, है ना, many religious place to attack on religious place and various type of attacks they want to destabilize, है ना। तो कई बार इस प्रकार के अटैक्स हमने देखे भी है भारत में। और ऑर्गेनाइज क्राइम, तो ये मिलिटेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही कर रहे हैं, वो पूरी तरह से जो है ऑर्गेनाइज क्राइम जो है हमेशा ज़्यादा फेवर्ड होता है और ये ट्रांसनेशनल होता है। और जो बड़े बड़े रिलीजियस ग्रुप्स हैं, large countries are providing funding to these so that their country's agenda may be fulfilled। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का अपना एजेंडा होता है, वो फुलफिल करना चाहता है, चाइना अपना एजेंडा फुलफिल करना चाहता है, भारत अपना एजेंडा फुलफिल, तो इस तरह से क्या है, एवरी कंट्री वांट्स टू फुलफिल इट्स एजेंडा। और यदि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है सो दे विल गेट फंडिंग एज वेल फ्रॉम वेरियस कंट्री। सो अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन और गैंग कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज माफिया, मॉब और क्राइम सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप, एक नेटवर्क, एक नेक्सस, है ना, एक नेक्सस बना लेना, नेक्सस, है ना, नेक्सस का मतलब होता है गठजोड़ बना लेना, राइट। सो मल्टीफेसेटेड, तो अल्टीमेटली जो मैं आपको एक कंक्लूजन के तौर पे बात करूं तो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीफेसेट, परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द टेररिज्म एंड सिक्योरिटी थ्रेट नीड टू बी नोन टू द वर्ल्ड। तो जो भी ये हानिकारक इसके प्रभाव है, जैसे अर्थव्यवस्था डिस्टेबलाइज होती है, सोशल ऑर्डर देश का खराब होता है ना, बहुत बहुत ग्रोथ पीछे चली जाती है देश की। भारत का मेजर जीडीपी और किसी भी देश का जीडीपी बहुत बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है, वी नीड अ ग्लोबल यूनाइटेड वर्ल्ड विच इज अगेंस्ट सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मिलिटेंसी, टेररिज्म, insurgencies, etc. So as to facilitate formulation of effective plan to ridicule it, we must ridicule it. No country, any country which have proper political order, which is democracy or not democracy but having proper political order, that country must ridicule these terrorism, insurgency, etc. The entire growth process will come to a, इस ये देखिए, ये जो पूरा एंटायर ग्रोथ प्रोसेस विल कम टू ए स्क्रीचिंग हॉल्ट, पूरी तरह से रुक जाता है इफ सिक्योरिटी कंसर्न्स आर टाइमली एंड एडिक्वेटली एड्रेस्ड। अब आप देखिए इजराइल और फिलिस्तीन में जो हो रहा है, तो क्या वो किसी प्रकार की ग्रोथ या पॉजिटिव एटीट्यूड है वहां पे? नहीं है। देयर विल बी नो ग्रोथ, ओनली नेगेटिविटी, नेगेटिविटी प्लस दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर इकोनॉमी, बोथ आर डिस्ट्रॉइंग इकोनॉमी। सो देखिए, जैसा कि आपने ये देखा वैसे आप देखिए ईरान के अपने एजेंडाज हैं इजराइल के खिलाफ, इसीलिए ईरान जो है सपोर्ट कर रहा था हमास को। सीरिया का अपना एजेंडा है, रशिया का अपना एजेंडा है, सीरिया को मदद कर रहा है, सीरिया हिजबुल्लाह को मदद कर रहा है। जॉर्डन के लोग जो हैं अगेंस्ट हैं वो भी। तो इस तरह से क्या होता है कि ओवरऑल यदि हम लोग प्रॉपर तरीके से चीजों को हैंडल नहीं करेंगे, जैसे इजराइल ने हैंडल किया है, just listen to me carefully, the way Israel handled this situation, it is not called a good handling, because this will create a major bipole, we can say it will polarize the world। जैसे 57 countries of OIC, Organization of Islamic OIC countries, और यहां पर ये यूरोपियन और यूएसए अलग हो गए, तो ये पोलराइजेशन हुआ है, टेररिज्म को बढ़ावा मिलेगा, कमी नहीं होगी। दिस टेररिज्म विल अगेन
डेस्टेबलाइज दी वेल ऑर्डर कंट्रीज और सोवरेन ऑर्डर कंट्रीज। ये प्रॉब्लम आएगी, फेस करेंगे हम लोग आगे। सो आप समझ गए होंगे कि ग्रोथ हॉल्ट हो जाती है और इसीलिए टाइमली एड्रेस्ड किया जाना चाहिए, हर मैटर्स को ग्लोबली, है ना, जो है हैंडल किया जाना चाहिए। आई थिंक सब कुछ क्लियर चल रहा है, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है। यस, तो अब हम लोग है ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2016 में आया था। एवरीडे व्हाटएवर, है ना, ऑल द क्वेश्चंस वी विल कवर रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। सो मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, एक स्टेटमेंट आया था एग्जाम में और उसको एनालाइज करना था। व्हाट वाज द स्टेटमेंट? टेररिज्म इज इमर्जिंग एज ए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स। टेररिज्म जो है ना एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बन गई है डे बाय डे ना। भाई कोई IS आ रहा है, कोई जो है हिजबुल्लाज आ रहे हैं, हमास आ रहे हैं। इसके बाद में आप इधर सोमालिया के अंदर देखिए पायरेट्स, तो बहुत बहुत है ना पाकिस्तान का जो टेररिज्म ग्रुप है। और इवन देखिए IS इवन ऑल द इंटेलिजेंस आर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू सच टेररिज्म related activities. So yes, it is becoming competitive industries. तो आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पे कोट कर सकते हैं, कैसे धीरे धीरे जो है एक ग्रुप आता है, फिर दूसरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री आती है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, दुनिया का सबसे पावरफुल टेररिस्ट ग्रुप कौन सा है। सो ये एक पैटर्न था, तो यहाँ पर एनालाइज करना है। सो देखिए यहाँ पर किस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर से आपको एक पैटर्न पता चलेगा, क्योंकि देखिए आंसर राइटिंग ही एग्जाम में आपको देखिए प्रीलिम्स क्लियर करना, इट डजंट मैटर, यू हैव टू हैव अ गुड आंसर राइटिंग स्किल्स। So in the recent year, with the emergence of new terrorist organizations like ISIS, Boko Haram, है ना, Boko Haram नाइजीरिया में बहुत ताकतवर थे ये, इनके पास पूरी तरह से मिलिटेंट थे ये। सो टेररिज्म बिकम कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज, और आजकल ल्यूक्रेट आकर्षण पैदा हो रहा है। चार्मिंग यंगस्टर्स आर ल्यूक्रेटिंग टुवर्ड्स इट, लाइक माफिया ऑर्गेनाइजेशन, एंड वन अपमैनशिप इज ऑफन बेस्ड इन ऑन हु हैज द मोस्ट गन्स, किसके पास सबसे ज्यादा गन है, मनी है, लोकल पावर है, टेररिस्ट ग्रुप है, टू हैव पैकिंग ऑर्डर, है ना। तो इस प्रकार का एक ऑर्डर हमने पिछले सालों में देखा। ये 2016 का प्रश्न है, तो अकॉर्डिंगली ही आंसर। द करंट कॉम्पिटिटिव मार्केट इन द टेररिज्म मीन्स दैट ग्रुप आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश ईच अदर थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ मोर मेमोरेबल वायलेंस। ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया। देखिए मोर मेमोरेबल वायलेंस क्या होता है? ऐसा कोई घटनाक्रम, ऐसा कोई ड्रेडफुल इवेंट किया जाए जो पूरी दुनिया याद रखे, जैसा अल कायदा ने किया था, है ना, अमेरिका में। जैसे चार्ली हेब्डो जो है अटैक्स एंड पेशावर अटैक, जो फ्रांस वगैरह में चार्ली हेब्डो, तो यहां पर पेशावर अटैक जो कि आपको याद आ रहा हो, कॉफिन्स में एक पूरे स्कूल में बहुत से बच्चों की, तो उस समय पर तो दे नीड टू do so because this is the only way they can be heard. उन्हें सुना जाएगा। देखिए the more powerful any terrorist group, the more funding it will get from various sources and become powerful enough to attract recruit, और इससे क्या होगा, और ज्यादा आकर्षण पैदा होगा कि लोग वहां, जैसे आपने देखा होगा जो कंपनी बहुत तेजी से उभरती है वहां पर सभी लोग रिक्रूटमेंट चाहते हैं। इसी प्रकार से टेररिज्म में भी है। In order to do so, terrorist groups are trying to outdo each other in intensity to scope the violence and bloodshed they can cause. More people can identify them. ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके, जैसा अल कायदा ने किया। अल कायदा अपने आप को ख़त्म कर गया। फिर ISIS, जैसे ISIS के लोन वॉल्स, आपने देखा होगा कि अकेला आदमी जाता है, बहुत सारे लोगों को मार देता है। लोन वॉल्फ अटैक, है ना, फिदाइन अटैक, कितना बड़ा अटैक किया एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने, और ये लोग इतना सपोर्ट करते हैं कि उनके पूरे फैमिली बैकग्राउंड को हमेशा जो है ना जो है पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, विच आर ईजियर फॉर इट टू फॉलोअर टू कैरी आउट विदाउट एक्चुअल ट्रैवलिंग टू ज्वाइन द ग्रुप। यहाँ पर जाके ट्रैवल करके ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपने देखा होगा, कई बार वीडियोज देखे होंगे। सो वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर, दैट इज वाई इट इज कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, है ना, टू गेट कंट्रोल ओवर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल रिजर्व पर पूरा कंट्रोल। आपने देखा होगा अभी सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा जो
ऑयल कंपनी है ना, दैट इज उस पर भी क्या हुआ था, यमन ने अटैक किया था, आपको याद आ रहा होगा, यमन ने, है ना। सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनी है सऊदी अरामको या सऊदी अरामको, और यमन को कौन बैक सपोर्ट कर रहा था, ईरान, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब की नहीं बनती है बिल्कुल भी, आपको जियो पॉलिटिक्स में बिल्कुल क्लियर होगी ये बात। इन द मिडिल, है ना, ईस्ट कंट्रीज, कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, आपने क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट का नाम सुना होगा, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ये एक गोल्डन क्रेसेंट है जहां पर सबसे ज्यादा ओपियम आर्म्स डीलिंग होती है। सो इस तरह से क्या है, कंपटीशन ओवर एस्टेब्लिशिंग देयर आइडियोलॉजीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैव आल्सो इंस्टिगेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार का जो कंपटीशन है उसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा बढ़ावा दिया। फॉर द एग्जांपल, मल्टीपल ग्रुप्स आर फाइटिंग विद ईच अदर इन सीरिया। सीरिया बिकेम द बैटल ग्राउंड। आपको पता होगा अल्टीमेटली बशर अल असद को यूरोपियन एंड यूएस से हटाना चाहता था। रशिया ने पावरफुली, क्योंकि उसका नेबर कंट्री है, रशिया ने पावरफुली उन सबको खदेड़ा। और फाइनली सीरिया में, जैसे मैंने हिजबुल्लाह भी बताया, हिजबुल्लाह ने भी अभी इजराइल में अटैक कर दिया था। सो इन रीसेंट टाइम टेररिज्म हैज बिकम अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। इसीलिए कह सकते हैं कि मल्टीपल ग्रुप ये फाइट कर रहे हैं अपने वर्चस्व को लेकर, है ना, अपने वर्चस्व को लेकर कि हु इज पावरफुल, हु इज मोर इन्फ्लुएंसिंग इन दिस इंडस्ट्री। तो इस प्रकार का जो ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेररिस्ट, मिलिटेंसी, और उसके बाद आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। आई थिंक आपको एकदम लेक्चर क्लियर हुआ होगा। सो आई मस्ट टेल यू दैट in this way, I think the first very basic lecture is covered to you. In the next lecture, we will cover the complete border management, and it is very very important for your basic concept. तो पहले हम लोग रूडिमेंट्स, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो any suggestion you have, please tell me so that I may come to you and I can resolve each and every problem of you guys. So thank you so much. We'll meet soon. जय हिंद दोस्तों।